पंजाब जीके ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪੇਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੱਥ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਈਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੱਥ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੱਥ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੌਂਗ, ਲੌਂਗ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਂਗ ਵੀ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੜਾ, ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਝਾਂਜਰ, ਝਾਂਜਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, who was appointed as the Lieutenant Governor of Punjab in 1859। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰੋਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਜੈਨਕਿੰਸ। ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੈਨਕਿੰਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੀ ਬਣੇ। ਹਿਊ ਗਫ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਿਊ ਗਫ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ, ਗਿਆਨੀ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਫॉर। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਵਾਟ ਫॉर, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਫॉर ਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਝਗੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਟੂ ਸੈਟਲ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਬਾਊਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰਸ, ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SYL ਵਾਲ ਦਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ ਦਾ SYL ਪੰਜਾਬ, ਗਿਆਨੀ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਨੇਮ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਨਵਾਬ ਬਾਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ।
the governor of Punjab and the missile he belonged to। एक हिस्सा तो लगता है कि वो सौखा है, दूजा जो दो चीज़ें नाल ऐड कर दी जांदियां ने उत्थे थोड़ी जी किते ना किते जरूर होंदा है कि पूरी चीज़ पता होनी चाहिए है। सो इत्थे चढ़त सिंह ते फैजलपुरिया। चढ़त सिंह जे सानू याद होवे ये कौन सीगे, ये महाराजा रणजीत सिंह दे दादा जी सीगे। महाराजा रणजीत सिंह दे फादर का की नाम सीगा, महा सिंह सीगा, और उन्होंने फादर का नाम सीगा अगे चढ़त सिंह सीगा। सो यह ऑप्शन जी सी गलत हो गई क्योंकि वो तो 1880-90 तक जैसे वो चल बसे सीगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। सरदार जय सिंह ते शुकर चकिया। जय सिंह एक सीगे कन्हैया मिसल के लीडर सीगे, और ये भी तुहानू दस दियां कि कन्हैया मिसल दे विच और शुकर चकिया मिसल दे विच आपस में लड़ाई हुई सीगी, और उस लड़ाई दे विच जय सिंह कन्हैया वो मारे गए सीगे। उस तो बाद जाके जिहड़ा सीगा फिर जय सिंह दी वोटी सदा कौर उन्हें अपनी धी महताब कौर दी जिहड़ी सी मंगनी सी किहदे नाल कीती, रणजीत सिंह नाल कीती सीगी, जिहड़ी कि 1892 दी गल है। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। जस्सा सिंह आलूवालिया ते दल खालसा, ये भी ऑप्शन गलत हो गई थोड़ी। जस्सा सिंह आलूवालिया ये आलूवालिया मिशन के इंचार्ज सीगे। सरदार कपूर सिंह ते फैजलपुरिया। सरदार कपूर सिंह जदों दल खालसा बन रहा सी तो उस वेले खालसा ते जदों कि आपां गल करिए कि नवाब का टाइटल देने की गल आई और जकरिया खान प्रपोजल लैके आया, तो मिसलां वाले दी सारियां दी मीटिंग हुई आपस दे विच, और उस मीटिंग दे विच यह किसी भी सरदार ने टाइटल लैन तो ना कर दी। फिर कहा कि टाइटल देना ही देना किसी को, तो उस वेले जिहड़ा घोड़ियां की संभाल करता सीगा, उन्हें देख रेख करता सीगा, उहदा नाम सी कपूर सिंह। उन्होंने टाइटल नवाब का दे दिता गया और उसने बहुत चंगे तरीके नाल अपनी जिहड़ी जिम्मेवारी निभाई, और फैजलपुरिया का वह इंचार्ज सीगा। सो ऑप्शन साडी किहड़ी ठीक हुई है, बी ऑप्शन ठीक हुई, कपूर सिंह फैजलपुरिया मिसल दे इंचार्ज सीगे। शेख फरीद द सूफी सेंट बिलोंग टू विच सिलसिला। पहली गल तो सिलसिला किहनू कहंदे ने, सिलसिला कहंदे ने कि सूफिया दे सिलसिले हुंदे ने। जदों कि एक कोई खास पीर होया, उहदा अगे मुर्शिद होया और उहदे अगे मुर्शिद होए, तो उस चीज़ नूं आपां की कहंदे आ कि सिलसिला कहंदे आ कि दैट मीनस ए ऑर्डर। एक आपां जिवें कहंदे आ कि मुगल डायनेस्टी, इत्थे डायनेस्टी नहीं हैगी क्योंकि ये जरूरी नहीं हैगा कि उसे दा बेटा जो सीगा अगे उहदा इमाम बने या उसका इंचार्ज बने। सो इस करके उन्होंने जिहड़े शागिर्द हैगे ने वो जिहड़े सीगे दे कॉन्स्टिट्यूट द सिलसिला। हुण इत्थे शेख फरीद दा क्वेश्चन ये हैगा शेख फरीद किहड़े सिलसिले नूं बिलोंग करदे सीगे। ऑप्शन किहड़ी साडे कोल इत्थे, ये नक्शबंदी होना चाहिए जी इत्थे, नक्शबंदी, सुहारवर्दी, चिश्ती ते कादरियां। सो आपां देखदे हां कि शेख फरीद ये चिश्ती सिलसिला दे जिहड़े सीगे ये सूफी संत सीगे, है ना जी। और चिश्ती जिहड़ा सीगा ये किहने शुरू कीता सीगा, ये आपां देखदे कि अपनी जिहड़ी राजपूताना दे विच उत्थे मोइनुद्दीन चिश्ती उन्होंने जिहड़ा सीगा एक ऑर्डर शुरू कीता सीगा, और उस तो बाद उन्होंने अगे शागिर्द जिहड़े सीगे वो सीगे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जिहड़े कि आपां कहंदे आ कि 1206 दे विच जदों कि मुहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान ते हमले करके इत्थे अपना राजपाट कायम कीता, तो उन्होंने दे नाल जिहड़े सी ओह दिल्ली आए सीगे। और बख्तियार काकी दे जिहड़े शागिर्द सीगे वो सी शेख फरीद। और शेख फरीद इहदा मतलब कि किहड़े सिलसिले दे हिस्से होए ओह चिश्ती ऑर्डर दे ओह सूफी संत होए। सो इस तरीके नाल आपां देखदे हां कि सानू इन्हां चीज़ां पता होना चाहिए। सो ही वाज द स्टूडेंट ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिहड़े कि मैं तुहानूं दस्सिया कि जदों कि मुहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान ते हमला कीता सीगा उस तो बाद जिहड़े सी ओह दिल्ली दे विच आए सीगे, और ओह मोइनुद्दीन चिश्ती जिहड़े सीगे चिश्ती ऑर्डर दे जिहड़े सीगे ओह भी सूफी संत सीगे। Which one among the following district is referred to as area white gold? So white gold का मतलब तुहानूं पता ही है, आपां किहदी गल कर रहे हैं, एक कपाह दी गल कर रहे हैं या नरमा दी गल कर रहे हैं। आपां किहदी गल कर रहे हैं, आपां कपाह दी या नरमा दी गल कर रहे हैं। सो नरमा दा जिहड़ा सीगा ओह वाइट गोल्ड दा एरिया किहनूं कहा जाता है,
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਪਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Which one of the following Anglo-Sikh war is called a Battle of Guns? Battle of Guns ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫਰਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਬਰਾਉਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਬੈਟਲ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ 1849 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ 1848 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਔਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੇਂਜ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੈਟਲਸ ਇਨ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ, ਨਦੌਨ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 1705, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1704 ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 1705 ਮਿਲੇਗਾ। ਨਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ 1691 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੰਗਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਦੌਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ, 1 2 3 ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Which one of the following fair is held in honor of goddess Shitala? ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ। ਔਰ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਮੁਕੁੰਦੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਿਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਆਨਸਰਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਇਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪਾਇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ? ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। Battle of Gujarat was usually preceded by, not proceeded, preceded by, ठीक है जी। सो ये एंग्लो सिख वॉर ते दूजा क्वेश्चन हो गया कि गुजरात की लड़ाई तो इमीडिएटली पहला किहड़ी लड़ाई हुई सी? दैट वाज द बैटल ऑफ चिलियांवाला हुई सी ये, ठीक है जी। सो इस बारे भी सानू पता होना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Which of the following pass connects Punjab with Quetta? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਇਟਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੋਲਾਨ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। Who was the chief minister of Punjab after Pepsu was merged with it from 1956 to 63? 1963 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 56 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਇਹ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਾਸ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Which organization was founded by ਭਗਤ ਸਿੰਘ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰੀ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, HSRA, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਫੇਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1921 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 12ਵਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ भी आई होगी और ठीक भी लग गया होगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जो 49th मॉक टेस्ट है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके आंसर्स को देखते हैं एंड इन द लास्ट एज यूजुअल अपने स्कोर को टैली कीजिए कि कितना स्कोर बन रहा है। और अब तो काफी सारे टेस्ट हो गए हैं यार, अब तो आई होप आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट चल रही होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द अदर थिंग रिमेनिंग द सेम हायर द प्राइस ऑफ द गुड द। वो कहता है कि अगर आपकी लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चले तो अगर एक चीज का दाम सेम रहता है तो हायर प्राइस किसका होगा आपके पास? स्मॉलर इज द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड। ठीक है, अगर कोई चीज आपके पास ज्यादा मात्रा में डिमांड में है लेकिन उसकी मात्रा प्रकृति में कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाए। जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द एरियाज विद सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल आर कॉल्ड। जहां पर एक जैसी सी बारिश होती है उसे आप क्या बोलते हो? आइसोहाइट्स बोलते हो। ठीक है जी। Which type of rainfall is caused as a result of air rising up the mountain? जो पहाड़ों में होने वाली बारिश जो हवा के ऊपर के रुख की वजह से होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ओरोग्राफिक रेनफॉल का नाम उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ जनवरी? तो ये आपके पास होता है 10th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। Who penned the following lines? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये किसने लिखा था? दिस वाज रिटन बाय बिस्मिल। ठीक है जी। नेक्स्ट, which of the following leaders proclaimed स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा? और ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने। बड़ी फेमस लाइन है, काफी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। With which of the following newspaper magazine महात्मा गांधी was not associated? इनमें से किसके साथ महात्मा गांधी एसोसिएटेड नहीं थे? तो युगांतर के साथ नहीं थे वो। ठीक है, युगांतर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड नहीं थे। Which of the following amendment act make the right to education as a fundamental right to all the children under the age of 6 to 14 years by inserting article 21A to the constitution? तो कहता है कौन से अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A को ऐड किया गया जिससे 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिल रही है? तो इट वाज 86th अमेंडमेंट 2002। टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी इयर्स? तो कितने साल के लिए आप कम से कम जज होने चाहिए हाई कोर्ट के ताकि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें? तो कितना है? 5 साल। एडवोकेट के लिए कितना है? 10 साल है। ठीक है। Which of the article states that there shall be parliament for the union? आपके पास सेंटर के लिए, यूनियन के लिए पार्लियामेंट होने चाहिए। ये आर्टिकल कौन सा आपका? आर्टिकल 79। It says it consists of president plus लोक सभा plus राज्य सभा। How many times the financial emergency has been declared in India so far? तो अभी तक एक बार भी नहीं हुई है, 0 times अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। Under 74th amendment of the constitution, the local body for the transitional area is known as। ठीक है, 74वीं अमेंडमेंट के अनुसार लोकल बॉडी जो ट्रांजिशनल एरिया में यूज होती है उसको क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत पे कहा जाता है। ठीक है, सबसे लोअर लेवल है ये। द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज? कितने साल का कार्यकाल है? इट इज ऑफ 6 years और 65 years, दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसे कंसिडर किया जाएगा। हु टॉप द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल विमेन इन इंडिया रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून इंडिया? भारत की 50 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल विमेन में लिस्ट में सबसे आगे कौन है आपके पास? हमारी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज निर्मला सीतारमण। द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव अमंग द 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफको? तो इफको का हेडक्वार्टर आपके पास कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको। The Stand Up India scheme has been extended till which year? तो ये आपके पास 2025 तक इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है। The World Bank approved 135 million loan to improve electricity distribution and grid modernization infrastructure in which state? जहां पे बिजली वितरण और उसके ग्रिड्स के लिए काम किया गया हो। 135 मिलियन का लोन है ये। वेस्ट बंगाल को ये लोन दिया गया है। December 4 is celebrated as the Indian Navy Day to commemorate which of the following events? 4 दिसंबर को आप नेवी डे बनाते हो तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था? Success of Indian Navy's Operation Trident in the Karachi port 1971। तो इंडिया के शिप ट्राइडेंट एक मिशन के तहत कराची के पोर्ट्स तक घुस गए थे और वहां पे शिप्स को डुबा दिया था। Which institution released the
स्टैकिंग अप द बेनिफिट लेसन फॉर द इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट, ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपको किसने दी है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। Who has been selected as the first deputy managing director of IMF? तो ये आपके पास कौन है? गीता गोपीनाथ, जिनको अभी सिलेक्ट किया गया है। Which big bank received in principle approval from the Reserve Bank of India for setting up proposed operational support subsidiary aimed to bringing down the cost to income ratio? ठीक है, तो ये आपके SBI के साथ हुआ है। SBI ने इसको लॉन्च किया था, ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडरी, यानी आप आउटसोर्स करोगे अपने काम को करने के लिए। Which Asian country has been elected to UN Statistical Commission for 4 years terms? तो ये आपके पास इंडिया को इलेक्ट किया गया स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंदर अगले 4 साल के लिए। At which age गौतम बुद्धा got निर्वाण? तो उनकी 35 वर्ष की आयु थी। गया के अंदर इनको हुआ था, that is near the निरंजना river, बोध गया। Who among the following is said to have hatched the Delhi conspiracy in 1912? 1912 के अंदर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के लिए इसमें से रिस्पॉन्सिबल कौन है? रास बिहारी बोस, ठीक है। ये इनके आइडिया मेकर ये थे। इनके पार्टनर इस केस में कौन रहे? सचेंद्र सान्याल वाज आल्सो द पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सचिन सान्याल भी इसी के ग्रुप में थे। Which among the following state of India can find fox tail orchid in the abundance? तो fox tail orchid आपको कहां पर दिखाई देते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसे राइनोक्योस्टिस रेटुसा का नाम भी दिया जाता है। तो दिस इज ऑल वी हैव इन द जीके सेक्शन। तो एक बार अपने क्वेश्चंस को टैली कीजिए, देखिए कितना स्कोर आपका बन रहा है, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो मैं आशीष आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं एक मॉक टेस्ट लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डैश आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे आपका यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है जैसे आपका यूजर आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, इस चीज की हमें बात यहाँ पे की गई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा है। अगर बात करता हूं तो उसे क्या बोला जाता है? फिशिंग ट्रिप्स बोला जाता है, कंप्यूटर वायरस बोला जाता है, फिशिंग स्कैम बोला जाता है, या स्पाईवेयर स्कैम बोला जाता है। देखो स्पैम, अगर मैं बात करता हूँ, वर्ड्स जो है मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर वायरस, तो पहली बात वो नहीं होगा। स्पाईवेयर जो होता है जासूसी भरे काम के लिए होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात की गई है, तो इसके स्पाईवेयर वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। नो डाउट इसका यूज कर सकते हैं, पर ये इंडिविजुअल के लिए जनरली हम लोग कम यूज करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हुई है ना, तो इसके लिए इसका जो वर्ड बनेगा वो फिशिंग ट्रिप्स नहीं बनेगा, फिशिंग स्कैम बनेगा। क्यों? क्योंकि एक बंदे के ऊपर पर्टिकुलर हम नजर बना के उसके डेटा को चुराने के, उसके कॉन्फिडेंशियल वैल्यू को उठाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन। जब बाय डिफॉल्ट में आपका डॉक्यूमेंट जो आता है वो कौन सा इसमें आता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप या फिर पेज व्यू। अगर मैं बात करता हूँ, दो ही तरीके के व्यू होते हैं, ये तो व्यू होते ही नहीं। एक होता है लैंडस्केप, दिस इज योर लैंडस्केप मोड, एंड दिस इज योर पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। दिस इज योर लैंडस्केप एंड दिस इज योर पोर्ट्रेट। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास जो आता है वो आता है पोर्ट्रेट व्यू। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बिफोर बॉम्बे। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किसका एग्जांपल है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या फिर वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। देखो क्लोज का मतलब तो कभी होगा ही नहीं, मन तो है नहीं, खुली मार्केट है। ओपन नहीं होगा, ओपन का मतलब होता है जो कि फ्री हो सभी के लिए, तो भैया फ्री तो नहीं है। अगला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब वर्टिकुलर जो होता है एक के लिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो सभी के लिए है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बंदे को ख्याल रख के बनाया गया है, वो सभी के लिए डिजाइन किया गया है। तो आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। हर कोई इसे सीख सकता है। डन। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले आपके पास क्या है? जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। जंक जो होती है अनवांटेड ईमेल। जंक का मतलब क्या होता है? अगर मैं बता दूं, अनवांटेड, ठीक है, ईमेल। तो अगर अनवांटेड ईमेल है तो स्पैम, स्पूफ, स्निफर या फिर स्पूल। स्निफर का मतलब होता है पीछे से नजर रखना, स्पूल का मतलब नहीं है, स्पूफ का मतलब भी नहीं है, यहाँ पे आएगा स्पैम। स्पैम आज की डेट में आपको जीमेल में भी एक मिलता है, जिसमें अनवांटेड ईमेल जो भी आपके काम की नहीं होते वो किसमें चली आती है? उसमें चली आती है, जिसको जंक ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। डन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग। अलॉटिंग का मतलब होता है बांटना, बांट थोड़ी रहे हैं। क्रैश का मतलब होता है चल नहीं रहा है। ट्रैक का मतलब है नजर रखना। देखो ऑप्शन अपने आप में एलिमिनेट हो रहे हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? फॉर्मेटिंग। इसका आंसर क्या बनेगा? फॉर्मेट। फॉर्मेट में सेक्टर और ट्रैक को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, विंडोज ही नहीं होंगे, तो आप कभी भी कोई काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, मतलब मेरे पास सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो मैं क्या काम करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू गेट हेल्प। अब हेल्प के लिए शॉर्टकट की अगर आपको चाहिए तो क्या है? F1, F7, F2 या फिर F10। अगर बात करता हूँ हेल्प के लिए, आपके पास ये आते हैं। ठीक है, आंसर बनेगा ए, और F2 का मतलब होता है रीनेम। तो याद रखिएगा क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो होपफुली आपको ये भी मीनिंग यहाँ पे क्लियर हुआ हो। चलिए जी, नेक्स्ट की बात अगर मैं करता हूँ, अगला क्वेश्चन ये रहा, MS पावर पॉइंट जो है वो किसके लिए यूजफुल होता है? राइटिंग डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, या फिर राइटिंग मेमोज, या फिर मेकिंग चार्ट एंड एनालाइजिंग द नंबर। तो ये तो कभी नहीं बनेगा। नंबर को एनालाइज करने के लिए स्प्रेडशीट होता है, राइटिंग के लिए है नहीं, डॉक्यूमेंट है नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग इसका क्या करते हैं? यूज कर रहे हैं। अब जो मैंने ये शीट बना रखी है, ये क्या है? प्रेजेंटेशन ही तो है। दिस इज कॉल्ड पावर पॉइंट। ठीक है ना। चलिए, तो अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपके पास स्प्रेडशीट। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब अपने आप में क्या होता है बेटा? आ, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो बाकी सॉफ्टवेयर की वर्किंग के ऊपर फर्क पड़ता है। तो वो कौन होता है आपके पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर दूं तो सिस्टम ही नहीं चलेगा, मतलब बाकी अफेक्ट होंगे ना। आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपके साथ हाजिर हुआ हूं, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रीजनिंग के इस मॉक में आपके पास क्या क्या था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास ये कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, तो चेक करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वर्ड है CURATIVE, और इसका कोड है BSVDDUHS। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है? इस पूरे के पूरे वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस पूरे के पूरे वर्ड को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया। फिर क्या हुआ? ए का क्या आ गया? बी आ गया आपके पास। ए का बी आ गया, आर का एस आ गया, यू का बी आ गया, और सी का डी आ गया। कहने से +1 हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 5 था, 4 आ गया, 22, 21, 9, 8, 20 और 19। तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे -1 हो गया। तो बेटा हर बारी पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत तो है ही नहीं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि से भाई ऑप्शन सही से काट के यहाँ पे कर ले। तो पहले मैं सिर्फ 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो ए का यहाँ पे बेटा बी आएगा, और यहाँ पे ई है तो एफ आएगा। ठीक है, टी है तो एस आपके पास यू आएगा, और एस है तो टी आएगा। पहले तो मैं ऑप्शन काट लेता हूँ। सबसे पहले एक ऑप्शन कट गया। अब BFUT आपके पास BFUT आगे है। यहाँ पे जी से एक कम करके एफ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एम से एक कम करके आपके पास 13 था तो 12 आएगा, एल आएगा। मतलब अभी तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो एन से एक और कम करेंगे तो एम आएगा, आई से एक कम करेंगे तो एच आएगा। तो देखो कितने क्लोज आंसर यहाँ पे आए हैं। तो अगर मैं बात करता हूं आपके पास BFUTFMHL, ठीक है ना। तो आपके पास ये भी कट गया यहाँ पे। इतने क्लोज आंसर आने के बाद ए ऑप्शन जो है आंसर बना। सम टाइम इट विल हैपन। तो फर्स्ट हाफ को पॉजिटिव +1 किया था, सेकेंड हाफ को -1 किया था। ये यहाँ पे लॉजिक था। चलिए आगे अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास जो है नंबर सीरीज से। इस क्वेश्चन में देखता हूं, तो अगर मैं यहां से यहां गया हूं, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या हुआ है? पॉइंट आपके पास 0, आपके पास 5,
ये मैंने अगर ऐड किया तो अगर मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ तो क्या हुआ है, पॉइंट आपके पास 10, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, ठीक है ना, देखो 0.5 पहले, फिर 10, फिर आपके पास यहाँ पे 15, 0.15, आगे है आपके पास 0.20। अगर 0.20 में करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो ए सी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। डन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू। सबसे अच्छी बात है सीरीज लिखी हुई है जी और क्यू, तो जी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। इन दोनों के मिड में आपके पास 1 2 3 4 4 छोड़ लिए, 1 2 3 4 4 छोड़ लिए, मिड कौन सा आ गया, एल। बात खत्म। अगर सीरीज लिखी थी तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया करो कि भैया इस तरफ छोड़ दिया, इस तरफ छोड़ दिया, जो बीच में बचा 4 4, बीच में जो बचा वो आंसर, खत्म, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कैलेंडर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं कि विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1982। 1982 के बाद सेम कैलेंडर कब रिपीट करेगा। देखो क्लासेस में मैंने आपको कहा भी है कि इसको करने का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है, बाई क्वेश्चन से ही। तो अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास देखो 1982 है, मैं उल्टा करा रहा हूं, मैं सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन ले रहा हूं 1993, ठीक है, 1998 भी है। अब मैं क्या करता हूं, पहले 1982 से लेके 1982 से लेके हमें 1992 तक सोल्व करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि आपके पास क्या 1993 जो है सेम कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है। तो 1982 से लेके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक तरफ लिखेंगे नॉर्मल ईयर, एक तरफ लिखेंगे लीप ईयर। अगर मैं देखता हूँ आपके पास 82 को भी इंक्लूड करेंगे, 82, ठीक है, 83, ठीक है, 84 लीप ईयर आएगा, 85, 86, 87, 88, ठीक है, 89, 90, 91 एंड 92। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल ईयर अलग लिख लिया, लीप ईयर अलग लिख लिया। इसका मतलब था बेटा कि अगर यहाँ तक जब ये नॉर्मल ईयर आता है तो एक और डे आता है, नॉर्मल ईयर में एक और डे आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। और जितने भी लीप ईयर होते हैं लीप ईयर में हर बारी 2 और डे आते हैं, तो 2 4 6 प्लस ऑफ 6, 8 6 14 डिवाइडेड बाय 7। अगर मैं बात करता हूँ 0, तो मतलब ये होगा कि आपके पास 1992 तक एग्जैक्टली और डे जो आएंगे 0 आएंगे। तो मतलब 1992 से अगला साल जो होगा 1993, वो क्या करेगा, सेम कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या है, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना, ये शॉर्टकट मेथड है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की क्या हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ 933, तो 9 इंटू 3 करते हैं 18, 18 इंटू 3, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 81, ठीक है जी। 9 22 81, 11 चौके 44, 44 इंटू 4। अब इन सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 455, तो सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, एनोलॉजी से लिया गया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या है, एल एम एन आर एस टी। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 12 होता है, 12 और 6 18 होता है, मतलब यहाँ पे प्लस ऑफ 6 हुआ है। अगर मैं 14 देखता हूँ, बी है, प्लस ऑफ 6 हुआ है। अब मैं 13 है, 19 है, प्लस ऑफ 6 हुआ है, मतलब समझ में आ गया, सभी में प्लस ऑफ 6 हुआ है। अगर इसी तरीके से देखता हूँ 22 और 18 नहीं बनेगा, ठीक है, 16 और 22 नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ 16 और 22 नहीं बन रहा, 18 और 14 नहीं बन रहा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 18 और 14 तो हमने यहाँ पे देखना है कि किसका बन रहा है। अच्छा यहाँ पे चेक करें, पी देखो, इसका नंबर होता है 16, इसका नंबर होता है 22, 16 4 20 2 22, इसका नंबर होता है 17 प्लस 6 23 और 18 प्लस 6 24। तो मतलब बी ऑप्शन आंसर यहाँ पे बन रहा है कि हर एक में गैप जो है वो कितने का आ रहा है, 6 6 का आ रहा है। तो ये आंसर बन रहा है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। इन अ रो ऑफ बॉयज
G1 is 7 from the start and 11 from the left hand. पहले एक रो थी जिसमें G1 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे जो थी 7 from the left hand और 11 from the right hand, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं, तो टोटल कैसे निकलता है, टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस ऑफ 1। तो आपके पास 11 प्लस 17 18 माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ 7 प्लस ऑफ 11 इज इक्वल टू 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो मतलब पहला तो टोटल मैंने निकाल लिया, कितना है आपके पास G1 का। आगे है आपके पास इन द अनदर रो ऑफ बॉयज विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड। अब विकास जो था 10th था स्टार्ट से और 12th था यहाँ से, तो अगर मैं 12 10 22 मतलब 21 आएगा विकास। मैं सीधा लिख रहा हूँ फॉर्मूला को पुट करके 21। अब पूछा है हाउ मेनी बॉयज इन बोथ द रोज 17 प्लस 21 कितना बढ़ेगा 38। 38 तो ऑप्शन में है नहीं तो डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। 38 तो ऑप्शन में है नहीं तो डी ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कैलेंडर से लिया गया है, सॉरी कैलेंडर नहीं क्लॉक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock एंड 3 o'clock, 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपके पास जो है अपोजिट स्ट्रेट लाइन जो है वो कहाँ पे आती है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, 60 अपॉन में 11 आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, 60 अपॉन में 11 आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपके सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था यूं करके, ठीक है। तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 6 बजे, तो मैंने एक शॉर्टकट बताया है, आप उसका वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता हूँ तो 6 से लेके 2 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला टाइम होता है इनटू में T1 आएगा। यहाँ पे T1 मतलब आपके पास फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो क्लॉकवाइज चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 60 इंटू में अपॉन में 11 इंटू में 8, तो आपके पास 480 बाई में 11। तो ए ऑप्शन आंसर बनेगा 480 पास 2, मतलब 2:48 11 पे 480 बाई 11 मिनट पे आपके पास ये नीडल क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट लाइन में आएंगे। आगे सॉल्व नहीं किया, नहीं तो आगे इसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है 12 भरना ही पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा इक्वेशन जो है सही है। तो प्लस का मीनिंग है माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन भर लेते हैं हम। यहाँ पे डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 1। अब उसने यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला है, सबसे पहले डिवाइड इंप्लाइज प्लस, तो 12 प्लस 8, मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है आपके पास, डिवाइड, और माइनस का मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस, और प्लस का मीनिंग क्या है, -1। तो मतलब अब ये इक्वेशन तो ऊपर वाली खत्म होगी, इसका तो यूज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे आप लोग। बोर्ड मास में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए इक्वेशन 12 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। पहले इसको सोल्व किया था ना हमने, ठीक है। अब यहाँ पे 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस ऑफ 1 आपके पास कितना आएगा 15। तो यहाँ पे 15 ही तो बताना था, तो यही तो था आपके पास आंसर, 15 इज इक्वल टू 15, ए ऑप्शन। मतलब फर्स्ट ऑप्शन से आंसर आ जाएगा अगर पूरा मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन में आपके पास जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है। रमन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 5 किलोमीटर अ प्लेस टुवर्ड नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट। यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना 5 किलोमीटर। देन टर्न आपके पास लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। Finally turn to right and walk 3 kilometer.
एंड रीच एट पॉइंट बी, बट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। अब ए से बी के लेके बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक 5 है, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक कितना है? 2 है। यहां से लेके यहां तक कितना है आपके पास? 2 है। तो 2 + 5 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, यही पूछा था, ए से लेके बी तक की दूरी, तो 7 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है? विलेज रामपुर इज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ द विलेज रेवा। रेवा के नॉर्थ में कौन है? रामपुर। और कितना है? 20 किलोमीटर। विलेज तापा इज 18 किलोमीटर ऑफ ईस्ट ऑफ विलेज रेवा। तापा 18। ठीक है, आगे है विलेज फतेहपुर इज टू द 12 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ रामपुर। रामपुर के वेस्ट में, ठीक है, फतेहपुर। ठीक है, देन आगे क्या है? इफ संजय स्टार्ट फ्रॉम द विलेज तापा, संजय अगर यहां से स्टार्ट करता है एंड ही गोज टू द विलेज फतेहपुर, तो विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ तो इस तरफ जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी आती है? इस तरफ जो डायरेक्शन आती है वो आती है आपके पास ईस्टर्न साइड। अब पूछा क्या है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहाँ से खड़े, स्टार्टिंग पॉइंट तो जो था यहाँ से, अच्छा अब यहाँ से खड़े होके आप लोग देखेंगे, यहाँ से आप लोग खड़े होके देखेंगे, यहाँ से खड़े हुए नॉर्थ और वेस्ट, तो यहाँ से लेके नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर जो है बन जाएगा। ठीक है ना, ये पूछा था स्टार्टिंग से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ से है। अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, लीजिए 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन आगे क्या है? एंड देन टर्न टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर। लीजिए, नाउ ही इज फॉर हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से पूछा गया कि यहां तक का डिस्टेंस बताइए, तो राइट एंगल बन गया। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, टोटल परपेंडिकुलर 9 है और यहाँ पे कितना है? 3 है। तो 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर पहले आपके पास 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, हाँ जी, 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 3 का स्क्वायर करते हैं 9। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सही है आपके पास। नाउ हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अ मैन वॉक टू 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया, देन ही टेक टर्न टू हिज साउथ एंड ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 5। ओके ओके, ये गड़बड़ होगी। यहाँ से 4, ये टोटल 9 था, ये 5 था, तो ये 4 था। तभी सोचो गड़बड़ क्या है, 4 आना था यहाँ पे 4 आएगा डिस्टेंस, तभी तो है। 4 अगर आएगा तो 16 बन जाएगा। 16 और 9 कितना होता है? 25, और 25 को ओपन अगर करते हैं तो सी ऑप्शन 5 आएगा। सी ऑप्शन क्या आएगा? 5 आएगा। डन। ये था 4 पूछा था, ना कि 9 तो टोटल था। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए जी, इस बार के मॉक टेस्ट में जो आपका क्वांट्स का सेक्शन था उसको सॉल्व करते हैं जी। मॉक टेस्ट नंबर 49। तो चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जी। ABC स्टार्ट एट सेम टाइम सेम डायरेक्शन। 3 पर्सन है जी, रन कर रहे हैं। पहले वाला एक सर्कल का कंप्लीट राउंड 252 सेकंड्स में कंप्लीट करता है जी, यानी फर्स्ट वाला जो है वो 252 सेकंड्स ले रहा है जी। सेकंड वाला पर्सन जो है वो 308 सेकंड्स लेता है जी, 308 सेकंड्स। और लास्ट वाला पर्सन है जी वो आपका तीसरे वाला पर्सन जो है वो 198 सेकंड्स लेता है। तो ये मान लेता हूं जी तीसरा 198 सेकंड्स है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जी, सभी ने एक साथ स्टार्ट किया, सेम पॉइंट पे कितनी देर बाद, इवन किस टाइम पे, कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है जी, तीनों पर्सन का कॉमन एक ऐसा मल्टीपल जो फर्स्ट रहेगा, यानी एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे सिंपली हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए अगर ऑप्शंस मिनट्स में है तो मैं काम कर सकते हैं जी, यहाँ पे वैल्यूज कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट्स में, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। मान लेते हैं जी अगर फर्स्ट केस को मैं 60 से डिवाइड करूं तो 6 4 24 और रिमाइंडर रहेगा जी 6 4 24 12।
12/60 का मतलब है जी 1/5 होगा जी। चलिए जी दूसरे की बात करें जी, डिवाइड बाय 60। 60 से डिवाइड करें तो 6 5 जा 30 यानी 5 8/60। 8/60 का मतलब है जी 4 2 जा 12 सॉरी 2 4 जा 8 यानी 5 8/60। तो ये रहेगा जी आपका 4 2 जा 8 60 4 1 जा 4 5 जा 15। चलिए जी और आगे चलते हैं जी। तीसरा है जी 198। अगर मैं इसको डिवाइड करूं जी 60 से तो 6 3 जा 18 यानी 3 मिनट्स और रिमाइंडर रहेगा जी 18/60। 6 3 जा 18 6 10 जा 60। चेक करना जी एक बार, मैंने यूनिट्स को सेम किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। जितना लेस लिखोगे उतना ज्यादा आप टाइम सेव करोगे। तो चलिए जब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक कर लेते हैं जी अगर आप चाहें तो। दिस इज 21/5। सेकंड की बात करें जी 15 75 और 2 77/15 और लास्ट रहेगा जी 33/10। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो आपका कहीं ना कहीं टाइम सेव होगा जी। चलिए जी लास्ट स्टेप लेते हैं जी। अगर मुझे एक फ्रैक्शनल टर्म्स का एलसीएम लेना है तो ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम रहेगा जी और नीचे वाली टर्म्स का क्या रहेगा, ठीक उल्टा, यानी कि एचसीएफ रहेगा। क्या रहेगा जी, एचसीएफ रहेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। 21 77 और 33 यानी 21 का मतलब है जी 7 into 3, 7 कॉमन आ रहा है जी, 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक 11 इंक्लूड हो रहा है जी। 11 into 3 33, 11 into 7 73, कॉमन पार्ट ये आ रहा है जी। और अगर तीनों के एचसीएफ लें जी, ऐसा एक नंबर 5 15 और 10 तीनों को डिवाइड करें, दैट विल बी 5। तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है जी। अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 7 into 3 21 into 11 231 इज डिवाइड बाय 5 जी। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना जी। दिस इज 231 इज डिवाइड बाय 5। 5 4 are 20, 5 4 are 20, रिमाइंडर रहेगा जी 31/5। 6 are 30, 1/5 ये आ रहा है जी आपके पास। यानी 46 मिनट्स और 1/5 जो है वो नेक्स्ट मिनट का है जी। तो ये हम इंक्लूड कर लेते हैं जी 60 के अंदर, यानी 46 मिनट जो है और साथ में रहेगा जी 12 सेकेंड्स। तो आपका आंसर नंबर जी डी ऑप्शन जो है वो आपका मैच हो रहा है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए जो है वो किसी काम को 24, बी जो है वो 16 दिन में, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 8 डेज। सी के अकेले के डेज निकालने जी। चलिए जी टोटल वर्क सिलेक्ट कर लेते हैं जी। 24 16 एंड 8 का अगर आप एलसीएम लो तो ये आता है जी आपका 48। मान लेते हैं जी टोटल वर्क जो है वो 48 यूनिट्स का है। अगर मैं ए की बात करूं तो डेज 24 ले रहा है जी। अगर हम बी की बात करें तो बी के डेज जो है वो 16 है। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी के डेज निकालने हैं। तीनों के कंबाइंड की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करते हैं जी आपके 6 डेज। तो चलिए जी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं जी तीनों पर्सन की। अगर मैं फर्स्ट वाले पर्सन की बात करूं 24 2 जा 48, 16 3 जा और ये रहेगा जी 6 8 जा 48। चलिए जी अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करूं 2 और 3 5, 5 में क्या चीज ऐड करें जी 8 बने, तो ये रहेगा जी आपका 3। 3 का मतलब है जी 48। सी की अगर मैं बात करूं तो सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट की है। लास्ट में हमें सी का टाइम पीरियड निकालना है। तो आंसर था जी टोटल वर्क जो 48 यूनिट्स का है उसको अगर मैं 3 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करूं चलिए 3 1 जा 3 3 6 जा 18। चलिए जी एक बार चेक करना जी ये। तो अगर लास्ट में ये पूछा गया है जी सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। सॉरी करेक्शन करना जी, यहाँ पे 6 डेज नहीं है, यहाँ पे 8 डेज है। आप करेक्ट करना जी, इसकी कंबाइंड डेज जो है वो आपके 8 हैं जी। अदरवाइज आपका ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हो रहा जी। तो ये कंबाइंड डेज जो है वो आपके 8 डेज हैं जी। स्टेटमेंट में जो मेंशन है वो 8 डेज है। तो तीनों मिलके 8 दिन में काम करते हैं। तो इसका मतलब कितना यूनिट काम होता है जी, 6 यूनिट काम होता है जी। कितना होता है जी, 6 यूनिट्स काम होता है। अब देख लेते हैं जी 2 और 3
5 है, तो यानी सी की जो एफिशिएंसी रहेगी वो कितनी रहेगी जी, वो रहेगी जी यहाँ पे 1 यूनिट की। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जी, मुझे टोटल वर्क करना है जी, तो टोटल वर्क का मतलब है जी 1 यूनिट, तो मेरा आंसर रहेगा जी यहाँ पे 48 डेज, करेक्ट है जी। चलिए जी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दो ट्रेन हैं जी पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं सेम डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 50 एंड 30 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन जो है वो 18 सेकेंड्स के अंदर स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर देती है। तो चलिए जी मान लेते हैं जी मेरे पास दो ट्रेन हैं जी, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और स्पीड जो है एक की 50 किलोमीटर पर आवर की है और एक की 30 किलोमीटर पर आवर की है। कह रहा है फास्टर वाली ट्रेन जो है वो स्लोअर वाली ट्रेन को एग्जैक्टली 18 सेकंड्स में क्रॉस करती है। तो अगर दोनों के दोनों मूविंग स्पीड पे हैं जी, तो स्पीड रिलेटिव वाला कंसेप्ट रहेगा। डायरेक्शन अगर सेम होती है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं जी। ओवरऑल जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर की आ रही है, यानी अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो मैंने 18 सेकंड्स में फास्टर ट्रेन ने क्रॉस किया है जी एक मैन को जो बैठा है स्लोअर ट्रेन में 18 सेकंड में। हमें बताना है जी फास्टर ट्रेन की जो लेंथ रहेगी वो बेसिकली क्या रहेगी। तो चलिए जी अगर मैं कहूं जी मैं 20 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से चल रहा हूं जी और मैंने 18 सेकंड्स के अंदर कोई चीज जो है वो क्रॉस की है जी, तो यहां से आप इनको प्रोडक्ट करके यहां से आपका टोटल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो जी। चलिए जी 18 सेकंड्स ले रही थी, तो चलिए जी लास्ट स्टेप लेते हैं जी 18 सेकंड्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट स्टेप में अगर ऑप्शंस मीटर्स में है तो कन्वर्ट कर लेते हैं जी 20 किलोमीटर पर आवर को, यानी 20 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं जी 5/18 रहेगा और मल्टीप्लाई करना है जी टाइम 18 सेकंड से। तो अगर आप सॉल्व करो तो 100 मीटर्स आपका आंसर है जी। चलिए जी और आगे चलते हैं जी। देयर विल बी अ 10% लॉस इन अ टॉय व्हेन इट्स सोल्ड एट 10.80 रुपीज, यानी अगर कोई चीज जो है वो 10.80 रुपए में बिकी है, अगर कोई चीज जो है वो 10.80 रुपए में बिकी है तो उसमें मुझे बेसिकली लॉस हुआ है जी 10% का, यानी इसका मतलब है जो उसका कॉस्ट था कि अगर 100% उसकी वैल्यू थी तो वो अपनी कीमत का 90% पे बिकी है। तो अगर ये 90% की वैल्यू है तो मैं ये कह सकता हूं जी 1% की वैल्यू आपके पास ये रहेगी। अगर आप 1% को 100% निकालते हो तो कॉस्ट रहेगा। अगर उसने मुझे ये पूछा है कि नया सेलिंग प्राइस बताओ जी 20% बढ़ा के, तो इसी वैल्यू को बेसिकली मैं 120% कर रहा हूं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 4 जा 12 3 जा 9 3 3 जा 9 6 जा 18, 36 को 4 गुना करोगे जी आपका आंसर रहेगा 14.40। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कॉस्ट प्राइस जो है किसी आर्टिकल का 40% है सेलिंग प्राइस से, यानी अगर मैं बात करूं जी कॉस्ट प्राइस जो है वो 40% है, अगर मैं सेलिंग प्राइस जो है उसको 100 एज्यूम करता हूं तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 40 है। स्टेटमेंट कह रहा है जी व्हाट परसेंट सेलिंग प्राइस इज द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है जी, कॉस्ट प्राइस यानी 40 का कितना परसेंट है, तो आप सॉल्व करो जी 250% आपके पास आंसर आएगा। चलिए जी और आगे चलते हैं जी नेक्स्ट केस में। वाटर टैंक जो है इज 2/5 फुल है, पाइप ए जो है वो 10 मिनट में फिल करता है, टैप बी जो है वो 6 मिनट में एम्प्टी करती है। अगर दोनों को ओपन किया गया है तो कितनी देर में सिस्टेन एम्प्टी होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है जी, और फिल द टैंक कंप्लीटली। चलिए जी एक वाटर टैंक है जी 2/5 फिल है जी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जी 10 मिनट और 6 मिनट का एलसीएम ले लेते हैं जी, तो मान लेता हूं जी टोटल जो आपके पास टैंक है वो 30 यूनिट्स का है। फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 10 मिनट ले रही है जी, सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली 6 मिनट में एम्प्टी करता है। चलिए अगर मेरे पास दोनों के टाइम गिवन है तो मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल सकता हूं जी। ये आ रहा है जी आपके पास 5 यूनिट जो नेगेटिव काम कर रही है और ये आ रहा है जी 3 यूनिट जो आपका पॉजिटिव काम कर रही है, यानी इसका मतलब है जी नेगेटिव काम ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली टैंक खाली होगा। तो अब अगर हम ये कहें कि 2/5 टैंक जो है वो फिल हुआ है, अब ये 2/5 किसका रहेगा जी, टोटल वर्क का। क्या टोटल टैंक जो है अगर वो 30 लीटर्स का है तो मैंने 2/5 जो है वो 30 लीटर्स का उसमें फिल किया है जी। तो अगर मैं 2/5 कैलकुलेट करता हूं जी 30 का, तो ये आपके पास निकल के आता है जी 12 लीटर, यानी 12 यूनिट काम जो है वो उसके अंदर हो चुका है, 12 लीटर सिस्टेन जो है वो फिल्ड है। अब आ जाते हैं जी 12 लीटर सिस्टेन अगर फिल है
तो उसको मुझे एम्प्टी करना है दोनों को साइमल्टेनियसली चला के। तो साइमल्टेनियस का मतलब है जी माइनस का 2 रिजल्ट आ रहा है, तो 12 लीटर खाली होने में कितना टाइम लेगा अगर हर मिनट में 2 लीटर खाली होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा जी 6 मिनट्स टू एम्प्टी। तो वेरी केयरफुली ऑप्शन सेलेक्ट करना जी, इंक्रीज वाला भी था। एक नंबर है जी जिसको इंक्रीज किया जाता है बाय 37.5%, तो वो बन जाता है गिव्स 33। तो लास्ट में अगर नंबर निकालना है जी, मान लेता हूं जी नंबर जो है वो x है, अगर मैं x में 37.5%, यानी मैं कह सकता हूं जी x प्लस 37.5 का मतलब होता है जी 3/8। 3/8 किसका रहेगा जी? उसी x का। यानी अगर मैं नंबर को 37.85% से बढ़ा देता हूं तो नंबर जो है वो बेसिकली कितना बनता है जी? वो बनता है जी 33। तो यहां से हम x फाइंड आउट कर लेते हैं जी। 8 प्लस 3 11, यानी मुझे 33 का 8/11 करना है जी। कितना करना है जी? 8/11। तो अगर आप इसको सॉल्व करो जी, 11 से 3 टाइम्स है जी, 8 गुणा 3 का मतलब है जी आंसर रहेगा जी 24। बहुत आसान क्वेश्चन था जी। 3 लीटर जो है वो वाटर ऐड किया गया है 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। 15 लीटर जो है वो मिक्सचर है जी, जिसमें 20% एल्कोहल है। देखो जी, अगर मैं मान लेता हूं कि पूरा मिक्सचर जो है वो 15 लीटर्स है, अब 15 लीटर्स के अंदर अगर 20% एल्कोहल है तो 20% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये 15 लीटर्स का करना है। तो 15 लीटर का अगर आप 20% निकालते हो तो आपके पास आता है जी 3 लीटर। यानी अगर 15 लीटर मिक्सचर है तो उसमें 3 लीटर जो है वो अल्कोहल है। अब उस मिक्सचर में अगर आप और वाटर ऐड कर रहे हो तो दैट मींस अल्कोहल वाला कंटेंट जो है वो सेम रहेगा, अल्कोहल की टोटल कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी क्योंकि मिक्सचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करूं जी, अल्कोहल अब बताने जी कितना है, तो अल्कोहल जो है वो स्टार्टिंग में 3 लीटर था जी, मिक्सचर अगर शुरुआत में 15 था तो मैंने उसके अंदर 3 लीटर वाटर ऐड किया, तो अब मिक्सचर जो है वहां पे 18 लीटर हो जाएगा। तो वही अल्कोहल जो है वो 18 लीटर में कितना है जी? तो मेरा आंसर रहेगा जी 62/3%। परसेंटेज है तो इंटू 100 रहेगा। चलिए जी और आगे चलते हैं जी। लेंथ ऑफ अ डायगोनल जो है किसी स्क्वायर का 15√2 है जी। सेम क्वेश्चन हमने पटवारी वाली वीडियो में भी किया था जी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जी, मेरे पास डायगोनल दिया है स्क्वायर का, तो स्क्वायर के डायगोनल का तरीका होता है जी x√2 और उसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है जी 15√2। यानी अगर आप यहां से x यानी कि साइड निकालना चाहते हो तो साइड निकल के आती है जी 15। अब लास्ट में उसने साइड ना पूछ करके मेरे से एरिया पूछा है, तो मैं कह सकता हूं जी 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर जो है वो आपका एरिया रहेगा जी 225। तो चलिए जी इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं जी। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जो कि ओपन है जी टॉप से, जिसके अंदर 24 मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम दिया गया है जी। लेंथ ब्रेड्थ जो है वो 4 और 3 मीटर्स की है। अगर मैं थिकनेस को इग्नोर करता हूं और उसको पेंट करना चाहते हैं इंटीरियरली और एक्सटीरियरली 10 रुपए के हिसाब से, कॉस्ट बतानी है जी कितनी है। तो चलिए जी, अगर मैं कहूं जी एक टैंक है जिसका टॉप वाला हिस्सा नहीं है, तो यहां पे अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया उसका कैलकुलेट कर लूं और उसमें इंक्लूड कर दूं आपका सिर्फ और सिर्फ बेस। बेस क्यों? क्योंकि टॉप मेरे पास इंक्लूडेड नहीं है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है जी रेक्टेंगुलर बेस है तो 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई रहेगा जी उसकी हाइट से, और प्लस बेस की बात करूं तो ये रहेगा जी l इंटू बी। यानी ये आपके पास जो है जी उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी दीवारों का एरिया और उसके साथ साथ बेस का एरिया भी है। तो अगर उसने मुझे ये कहा है जी इंटीरियरली और एक्सटीरियरली सॉल्व करना है, दोनों जगह पेंट करना है, तो ये पूरा पार्ट जो है वो डबल भी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है जी। अब यहाँ पे डायमेंशंस देख लेते हैं जी मेरे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले उसने ये कहा है जी लेंथ जो है वो 4 है, ब्रेड्थ जो है वो 3 है। अगर मेरे पास उसका वॉल्यूम गिवन है तो मैं यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के डेफिनेटली इसकी हाइट निकाल सकता हूं। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है जी कि अगर मैं लेंथ की बात करूं जी 4 है, ब्रेड्थ की बात करें तो मेरे पास 3 है, हाइट मान लेते हैं जी h है, और अगर वॉल्यूम जो है वो 24 है तो यहां से आप h निकाल सकते हो जी, दैट विल बी डेफिनेटली कितना? 2 मीटर। तो अगर आप h निकाल सकते हो तो यहाँ वैल्यूज पुट अप की जा सकती है जी। यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी ये रहेगा जी 4 और 3। 4 और 3 का मतलब है जी 7। 7 को हमें डबल करना है जी और मल्टीप्लाई करना है जी हाइट। हाइट हमने अभी निकाल लिया जी 2 है, प्लस रहेगा l इंटू बी यानी बेस का एरिया। तो अगर l की बात करें जो 4 है इंटू 3 है, तो 4 इंटू 3 का मतलब है जी 12 है। तो अगर आप सॉल्व करो जी 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28, यानी 28 के अंदर मुझे 12 जो है वो और इंक्लूड करना है। यानी अगर मैं सिर्फ
लेटरल सरफेस एरिया और साथ के साथ बेस का एरिया एक साइड का चेक करें तो ये निकल के आता है जी 40। अब अगर मैं लास्ट टाइप की बात करूं जी, मैंने ट्वाइस किया था। ट्वाइस किस लिए किया था? क्योंकि अंदर की साइड भी पेंट करना है, बाहर की साइड भी पेंट करना है, तो एरिया एग्जैक्टली डबल हो जाएगा जी। तो मैं कह सकता हूं जी टोटल मेरे पास एरिया जो है वो 80 मीटर स्क्वायर है। अगर मेरे पास कॉस्ट जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए है, तो 80 का जो कॉस्ट रहेगा वो कितना रहेगा जी? 800 रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं जी। एरिया ऑफ टू स्फीयर जो है उनका रेशियो गिवन है 1:4। अगर मैं एरिया की बात करूं तो फॉर्मूला होता है जी 4/3। यह हम एक काम करते हैं जी, इस चीज को भी हम यूज नहीं करते। अगर मैं कहूं जी एरिया की वैल्यू गिवन है तो डेफिनेटली रेडियस का स्क्वायर गिवन है। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो डेफिनेटली रेडियस का क्यूब करना है। तो मैं सिंपली कह सकता हूं जी अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1:4 है, ये मान लेते हैं जी R1, और R2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1:4 है एरिया के लिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा जी। तो यहां से मैं रेडियाई का रेशियो निकाल सकता हूं जी, दैट विल बी 1:2। और अगर मुझे लास्ट में वॉल्यूम निकालना है तो सीधा क्यूब करो जी, 1/8 जो है वो आपका आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं जी इसी के साथ। 60 kg प्लेस जो है, व्हेन अ पर्सन जो है वो 60 kg का उसको रिप्लेस किया जाता है एक नए पर्सन से, तो एवरेज जो है वो 25 नंबर ऑफ पर्सन जो है उसकी एक एक kg बढ़ती है। यानी इसका मतलब है जी, अगर मैं कहूं मान लेते हैं 25 नंबर ऑफ पर्सन है, ये मान लेते हैं जी 25 नंबर ऑफ पर्सन है। 25 नंबर ऑफ पर्सन जो है वो एक एक kg के हिसाब से इंक्रीज हो जाते हैं जी। और ये कब होते हैं जी? जब एक पर्सन जो 60 kg का था, मैं उसको रिप्लेस करता हूं जी एक ऐसे नए पर्सन से जिसका वेट मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा एक सिंपल सा सवाल इस केस में, अगर नया पर्सन 60 kg का ही होता तो मैं कह सकता हूं जी जितना लॉस हुआ है उतना ऐड हुआ है, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एवरेज बड़ी है तो डेफिनेटली नया पर्सन जो है वो 60 kg से वेट में ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा जी? कि उसने 25 नंबर ऑफ पर्सन एक एक केजी से बढ़ाए हैं। तो इसका मतलब बेसिकली 25 केजी वेट बढ़ा है, तो 60 से 25 केजी ज्यादा का मतलब है जी उस पर्सन का वेट रहेगा 85 केजी। चलिए जी ए और बी जो स्टार्ट कर रहे हैं जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 और 11 है, दोनों का एनुअल प्रॉफिट्स का रेशियो गिवन है। ए का टाइम पीरियड गिवन है, तो ये बताना है जी बी ने इन्वेस्ट जो है वो कब किया है, इन्वेस्टेड द मनी फॉर। चलिए जी पार्टनरशिप से सिंपल क्वेश्चन है जी, मान लेते हैं जी अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 और 11 रेशो में है, ए का टाइम गिवन है जी 11 मंथ है, बी का टाइम मुझे फाइंड आउट करना है यानी कि x मंथ है, और इक्वल रहेगा जी आपके प्रॉफिट के रेशो से यानी कि 4/1। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करो जी, यहां से अगर आप x निकालना चाहो तो x की वैल्यू निकल के आ रही है जी 3 मंथ। यानी बी इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, ऑप्शन नंबर ए जो है जी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जी तो ये था जी इस बार का मॉक टेस्ट, उम्मीद है आपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मिलाए होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं जी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नेक्स्ट टाइम। तो टिल देन आप अपनी तैयारी जारी रखना जी, और कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, check करते हैं what we have in store for us as per the mock. अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। Says आपको इसमें ऑपोजिट निकालना है, यानी he's talking about antonyms की बात कर रहा है। Villas infiltrated in the region during the severe winter of 1997. Infiltrated का मतलब होता है अंदर आ जाना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा expelled, बाहर निकाल देना। Next, a fortuitous combination of circumstances led to the discovery of his lineage. तो इसका आंसर हो जाएगा unfortunate, उसका मतलब something that happens by chance, right? Not intentionally but by chance. Next, ये आपके पास एक प्रॉपर पैसेज आया है, इस पैसेज को डील करते एक बार पढ़िए। तो ये पैसेज में क्या बता रहा है कि मैन की डिजायर वॉर सिर्फ उसकी फाइट ऑफ सर्वाइवल से नहीं, कि वॉर नेसेसरी है उसकी वर्लिटी को प्रिजर्व करने की। वॉर आजकल एक लेगेसी को छोड़ जाता है, वीकेस्ट मैन को स्टिमुलेट करता है, ना कि नॉबल बट जो बेस्ट क्वालिटीज मैनकाइंड की निकल के आती है। एडवेंचर किसी तरह का नेसेसरी है मैन के लिए, वो इनएविटेबली डिट्रॉइट कर ही देगा फिजिकली और मेंटली, अगर लाइफ उसकी नीड्स पे आ जाएगी और अगर लग्जरी उसके एटमॉस्फेयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट में आ जाएगी।
रियल रीजन हमारा जो लव है स्पोर्ट्स के लिए ओपन एयर में वही है। ऐसा कोई यूज नहीं है कि अगर आप मिलियनेयर हो, अगर आप क्रॉनिक इंडाइजेशन से सफर कर रहे हो, एक ट्रैम्प विद गुड इनर्ट्स इज फार हैप्पियर। इसके पास कुछ नहीं है, वो बेटर है। नेक्स्ट, नथिंग दैट मनी कैन बाय इज वर्थवाइल विदाउट गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के अलावा कुछ भी नहीं है। नो बेटर वे कि हम उसको परफेक्ट हेल्थ और फिजिकल फिटनेस दे रहे हैं कि वॉक ओवर और क्लाइंब कर ले हिल्स और माउंटेन्स। माउंटेन्स हमको फिजिकल फिटनेस से ज्यादा और कुछ भी देते हैं, दैट इज एक्सरसाइज द मेंटल फैसिलिटीज एज वेल। कहता अगर हम क्लाइंब करें हाई और डिफिकल्टी पीक वाला, उतना ही इजी मेंटली आपको फिजिकली फिट बनाएगा जितना आपको फिजिकली बनाता है और मेंटली बनाता है। कहता वो सेंस और जजमेंट को कॉल करता प्लानिंग और थिंकिंग की, और एंटिसिपेट करता हमारी डिफिकल्टी एंड डेंजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे कंपेनियंस की, और बेस्ट ऑफ ऑल वो हमको माउंटेनियर एक तरह से टच में लेके आता यूनिवर्स की ब्यूटीज के साथ। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया उसको देखते हैं। इट इज लाइक दिस, कहता है नथिंग दैट मनी कैन बाय इज वर्थवाइल विदाउट व्हाट, विदाउट मेंटल फिटनेस, विदाउट एडवेंचर, विदाउट लव ऑफ स्पोर्ट्स। तो कहता है यहाँ पर गुड हेल्थ है, गुड हेल्थ के साथ बाकी सब कुछ मिल जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट, अगर मैन लीड करता लाइफ एटमॉस्फेयर और सेफ्टी फर्स्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंप्रूव करेगा फिजिकली और मेंटली। वो कहता है कि मैन अगर सेफ्टी फर्स्ट में जाता है तो वो इतना खुश नहीं रहता है, डिटोरेट करेगा फिजिकली और मेंटली, खराब हो जाएगा। हाँ जी ये सही है। इंप्रूव करेगा नहीं, इंप्रूव तो होगा ही नहीं, डिटोरेट की बात होगी। नेक्स्ट, बेस्ट वे क्या है परफेक्ट हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का अकॉर्डिंग टू बेस्ट, फाइटिंग, लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी, क्लाइंब हिल्स एंड माउंटेन्स। जी हाँ, क्लाइंब हिल्स एंड माउंटेन्स। वॉर नाउअडेज स्टिमुलेट क्या करता है, उसने बताया था ना, आजकल वो नोबल क्वालिटीज लेकर आता है मैनकाइंड की, ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है। बेस्टिल क्वालिटीज लेकर आता है? नहीं। मैंस फाइट फॉर सर्वाइवल लेकर आता है? हो सकता है। अब डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, देखो चार चीजें आ गई आपके पास, बेस्टिल क्वालिटीज आ गई, मैंस फाइट फॉर सर्वाइवल आ गया, ये सब कुछ आ गया। अब क्या लगता है आंसर क्या होगा? सर उसने डायरेक्ट बताया था ना, देखते हैं, दिखाते हैं आपको। सेफ्टी फर्स्ट, देखो ईज ऑफ लग्जरी हो जाएगा, सेफ्टी फर्स्ट हो जाएगा, क्रॉनिक चीजें आ जाएंगी, तो क्या फायदा? तो कहता है ये कुछ वर्थ नहीं है। एडवेंचर तो नेसेसरी है ही है उसकी लाइफ में। हाँ तो क्या है, अब वो क्या लेकर आएगा? कहता वो एक तरह से उसका फाइट लेकर आएगा, किसमें? सर्वाइवल। नेक्स्ट, बेस्ट एडवांटेज माउंटेनरिंग एडवेंचर जो है वो करता है, आर्ट ऑफ प्लानिंग, थिंकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड या कॉन्टैक्ट विद द ब्यूटीज ऑफ यूनिवर्स। ब्यूटीज तो मिलता है यूनिवर्स का, कहते बोलता है ना कि नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करता है वो, और क्या चाहिए उसको। नेक्स्ट, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हो जाएगा। अब वो हैबिट ऑफ स्मोकिंग है तो हैबिट ऑफ स्मोकिंग के साथ द लग जाएगा, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट, इसमें आपको इडियम का आंसर बताना है। इन अ डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस। डिबेट में कोई भी अलाउड नहीं कि फेंस पे बैठो। अवॉइड टेकिंग साइड्स, टू इंसल्ट अ स्पीकर, टू रिलैक्स व्हाइल अदर्स स्पीक, टू एग्री विद एवरीवन। तो अवॉइड टेकिंग साइड्स, आप साइड्स नहीं ले सकते हैं, आपको डिबेट में अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अगला है with her childish innocence she won the heart of everyone present there। वो कह रहा है बेसिकली आपको इसका एग्जैक्ट मतलब बताना है और इंप्रूव करना है, तो कहता है चाइल्ड लाइक हो जाएगा, चाइल्डिश नहीं हो जाएगा। चाइल्ड लाइक के साथ आपका ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अब फॉलोइंग जो आपके पास है, ये आपको PQRS वाला अरेंजमेंट दिया है, आपको इसमें फॉलो करना है कि आपके अकॉर्डिंग कैसे, राइट। यहाँ तो दिया हुआ है, यहाँ पे तो आपके पास अगले वाले में दिया हुआ है, पिछले वाला आई गेस इज नॉट गिवन। हम पहले अगले वाला चेक कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। देखो क्या है इसमें, कहता वी आर स्टिल इन द Cenozoic era, age of mammals. Will mammals one wonders continue to be Earth's leading animals? ये तो क्वेश्चन हो गया और ये भी क्वेश्चन हो गया। No one can tell you आंसर हो गया। दो क्वेश्चन को इकट्ठे कर दो और आंसर एक आएगा, PQ QP, इनके बाद S तो आएगा। देखो PQ है नहीं, PQ है लेकिन S नहीं है, PQ है लेकिन S है, PQ है लेकिन S नहीं है। मोर ऑफनली आंसर आपका ये होगा, बट इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि एक्चुअली में है कि नहीं है। वी आर स्टिल इन जैसे ना
the great ice age and time since forms a part of it, R, then it comes out to be P, will mammals. हाँ, फिर ये भी क्वेश्चन और ये बिल्कुल सही, RPQS। तो यहां से आपको पता लगा ये आंसर क्या है। अब पिछले वाले क्वेश्चन का हमारे को गिवन नहीं है, बट आई जस्ट फाइंड इट आउट फॉर यू, आई डू हैव दैट की फॉर यू। ये सर्जन्स वाला कोई क्वेश्चन है, सर्जन्स वाला एक क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर निकाल देते हैं। सर्जन्स आर ओनली नेक्स्ट टू गॉड, सर्जन्स की बात हो रही है कि वो नेक्स्ट टू गॉड है। फिर वो बता रहा है P, as such they become demigods and as the saying goes, no, they give। सर्जन्स के लिए दे लग जाएगा, R से स्टार्ट होगा। इसके ऑप्शंस में है, हाँ जी है, one is PQRS, one is RSPQ, one is RPSQ, अगला Q वाला, तो Q से स्टार्ट नहीं हो रहा, P से स्टार्ट नहीं हो रहा, R से स्टार्ट हो रहा है। तो इतना तो पता लग गया R से स्टार्ट हो रहा है। अब R में है they give a new lease of life to people who are in their deathbeds। अब उसके बाद एंड द सेम गोज, R के बाद Q है, R के बाद S भी है, S लगाते फर्दर सर्जन्स वर्क नहीं आएगा क्योंकि दे लगा रखा है। अगर मैं R के बाद P लगाता हूँ, P में भी दे है, एस दे, तो इसका आंसर हो जाएगा RPSQ, यानी ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो यस, देयर वी गो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।